ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے جہاں وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت ایپیکس کمیٹی اجلاس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جہاں تک کائنیٹک کا جو ہمارا جو ہے معاملہ، وہ the chief army staff is sitting here with his general officers and we are all having this iron resolve کہ ہم نے انشاءاللہ کائنیٹک محاذ پہ پوری طرح ہم نے اس کو جستجو کرنی ہے اور ان کا صفایا کریں گے۔ اور اس میں دیکھیں یہ بحث ختم ہو جانا چاہیے، یہ اس کو ہم آسان بنا لیں اس بات کو کہ جو دہشت گرد ملک دشمن ہیں ان کے ساتھ تو کوئی رعایت کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ان کے عزائم کو، ناپاک عزائم کو خاک میں ملانا ہم سب کا ایک ملی، ہمارا سیاسی اور دینی فرض ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، جو پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں، ان سے ڈائلاگ کرنا یہ بھی اپنا ایک بالکل وقت کی ضرورت ہے۔ بٹ وی مسٹ ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو کہ جو دہشت گرد ہیں، جو پاکستان دشمن ہیں، ان کے ساتھ نہ صرف کہ کوئی ڈائلاگ کا سوال نہیں پیدا ہوتا، ان کا خاتمہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت سے جو آپ نے آج ہمیں جو آپ کی خدمت کرنی ہے، اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ اس میں بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں اینڈ دین ٹیک ڈیسیژنس اینڈ دین امپلیمنٹ دیم اسپیڈیلی۔ تیسری بات جو ہے یہاں پر آفیسرس کا قابل، ہونہار، انرجیٹک آفیسرس کا ہونا، چاہے وہ سول سروس کے ہیں چاہے وہ پولیس سروس کے ہیں، ان کا ہونا، موجود ہونا اپنی جگہوں پر، ضلعوں میں، تحصیلوں میں، ڈویژنز میں انتہائی ضروری ہے۔ ایک انفارچونیٹلی ایک روش ہے کہ بلوچستان سے آنے سے کتراتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم نے جب سے واقعہ ہوا ہم نے ڈسکس کیا اور انٹیریئر منسٹر سے بھی بات ہوئی اور میں نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، چیف سے بھی اس ڈسکشن ہوئی۔ تو ایک ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے اور پھر وہ پالیسی کے اوپر جب عمل ہوگا تو دین دیر ول بی نو کمپرومائز، نہ آپ کریں گے نہ ہم کریں گے بالکل، وغیرہ وہ پالیسی پھر خدا نہ خواستہ فیل ہو جائے گی کہ جی اس بندے کو رہنے دیں، اس کو لے آئیں، اس کو واپس بھیج، یہ نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر اگر ہم یکسو ہیں، اف وی آر آن ون پیج، تو اس پالیسی کو میں یہاں پر ابھی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو 48 کامن کے جو آفیسرز جو ہیں، سول آفیسر، اب دیکھیں نا آئی جی صاحب انصاری صاحب تشریف لے آئے ہیں، بیٹھے ہیں، میں یہاں پر کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ ہم نے کوشش کی کہ ان جیسے اچھے آفیسرز آ جائیں، مگر there was some reluctance. It's very unfortunate. تو we had to take punitive measure. یہاں پر یہ پالیسی جو ہوگی، یہ 48 کامن کے جو آفیسرز ہیں ان کو ہم یہاں پر لے کے آئیں گے، اور ان کی جو ہم نے ترتیب بنائی ہے میں وہ یہاں پر ذرا بتانا چاہتا ہوں، along with an incentive policy، تاکہ انسینٹیو ہو کہ بلوچستان جا رہے ہیں تو وی ول بی ریوارڈڈ فار آر گڈ ڈیڈس۔ تو وہ پالیسی ہے کہ half of the officers from the 48th common training program of both police and civil side will be posted to Balochistan immediately for a period of 1 year. Number two, the remaining half of the officers from the 48th group will be posted to Balochistan 6 months from the initial deployment. They will also serve for a period of 1 year. پھر نمبر 3 phase ہے، after 1 year the first half of the officers from the 49 will be posted to Balochistan for a period of 1 year. Phase 4, after 1.5 years the remaining half of the officers from the 49th group will be posted to Balochistan for a period of 1 year. یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، اور ان کے لیے ہم نے جو انسینٹو یہ بنایا ہے، the officers posted under the policy I've just mentioned
will be given 4 air tickets for travel of the families for every quarter. This will be monetized. Number 2, these officers may be given 3 extra points in their performance evaluation report, subject to their commitment and their service in the province of Balochistan. And if they are found really very agile and very committed, उनको हम ये 3 extra points उनको हम देंगे उनको। ये पॉलिसी का मैं आज ऐलान कर रहा हूँ। इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम फिल फॉर इसके ऊपर हम अमल करेंगे बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ, मुशावरत के साथ, वज़ीर आला साहब के साथ और चीफ सेक्रेटरी के साथ और आईजी पुलिस जो। तो ये पॉलिसी जो है नवाब साहब, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। इसमें फिर देन देयर विल बी नो इफ एंड बट। तो इसको इंशाअल्लाह हम रिजॉल्व करेंगे, अपना इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे इसके बड़े दूरस और बड़े मस्बत नताइज होंगे इसके अलावा चमन बॉर्डर पे जो पासपोर्ट स्टाफ जो है उसको ऑलरेडी डबल कर दिया गया है और डायरेक्टर साइबर बलूचिस्तान जो हैं उनकी तैनाती अगले चंद दिनों में इंशाअल्लाह यहाँ पर हो जाएगी। मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें ये जो बात है, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए, सोशल प्रोग्राम लेके आए, इंतहाई ज़रूरी है, कोई शक नहीं। लेकिन मैं पहली मीटिंग में भी कह चुका हूँ, मैं फिर इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अगर मामलात डेवलपमेंट की कमी का होता या कोई सेंस ऑफ डेप्रिवेशन की बात होती कि 27,000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। और मैं ये बात दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आई थिंक इसका जिक्र करना अच्छा होगा फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री कि एनएफसी में बलूचिस्तान का जो हिस्सा है 2010 के एनएफसी में वो दुगना कर दिया गया है और उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सूबा पंजाब ने की है। मैं वहाँ पर था, उसका पंजाब का खादम, और बड़ी खुशी से जब मैंने पंजाब असम्बली को ये बात सुनाई तो मुझे शायद एक अंदेशा था कि कुछ आवाज़ें उठेंगी। आप यकीन करें कि सब ने कहा कि वज़ीर आला बहुत अच्छा काम किया। तो वो जो फंड्स अलोन, वो जो एडिशनैलिटी है, वो मैं समझता हूँ कि पंजाब का जो हिस्सा 11 बिलियन वो तकरीबन 160 अरब बनता है इन 14 सालों में। पूरे पाकिस्तान में शफाफियत वही होनी चाहिए जो इनके इदारे का मेयार है। और मैं समझता हूँ कि हम अपने ताईं नवाज शरीफ की लीडरशिप में पंजाब में वफाक में हमने किया, बाकी हुकूमतें भी डेफिनेटली उन्होंने किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उसी शफाफियत को जिसको झंडा उठाकर वज़ीर आला चले हैं, मुझे बड़ी खुशी है, तो आप यहाँ पर खुशहाली का, तरक्की का इनकलाब ला सकते हैं, मुझे कोई शक नहीं, प्रोवाइडेड कि वो जो फंड्स की जो तरसील के साथ उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है तो वो उसमें अगर आप लेके आएंगे चेक एंड बैलेंस, थर्ड पार्टी ऑडिट, सुपरविजन, जिस तरह आपका एक विजन है, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ इससे, क्योंकि जो बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है या केपी के बाज़ हिस्सों में जो कुछ हो रहा है वो एक बड़ा एक दुश्मनाने पाकिस्तान का, जो नहीं चाहते कि सी पैक का मंसूबा चले, जो पाक चीन दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के आड़े आना चाहते हैं, उसमें दे वांट टू क्रिएट बॉटलनेक्स। और उसके लिए उनको अब गवादर पोर्ट एक बेहतरीन मंसूबा है पाकिस्तान की और बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का। लेकिन जिस तरह गवादर को फोकस किया जा रहा है, वहाँ पर धरने दिए जा रहे हैं, वहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर इन लोगों को जो ये हमले कर रहे हैं, जो धरने कर रहे हैं, अगर उनको खुशहाली से उनको अगर फ़िक्र होती तो गवादर तो एक बेहतरीन मंसूबा है। मैंने वफाक में ये अपना पिछली हुकूमत में भी जो हमारी 16 महीने की थी, आज फिर इस मरतबा मैंने रिट्रेट किया है कि 50% जो पब्लिक सेक्टर में जो इम्पोर्ट्स होती हैं, चाहे वो आपका फर्टिलाइज़र है, जो भी है इम्पोर्ट्स होती हैं, वो गवादर पोर्ट से होंगी, ताकि गवादर पोर्ट
ऑपरेशन हो, यहाँ पर लोगों को, वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचे, उनको जॉब्स बने, वहाँ पर ट्रक्स लोड करेंगे, अनलोड होगा माल जो आता है, फिर पूरे खत्ते में उसकी जो अपना एक रीजनल प्रॉस्पेरिटी होगी, उसका कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन उनको फोकस कर रहे हैं। इसलिए क्यों कि चाइना पाकिस्तान सी पैक। तो मैं समझता हूँ कि ये वो बुनियादी मामला है, और इसके लिए हमें पूरी तरह यकसू रहने चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो दोस्तनुमा दुश्मन जो घुसपैठी हैं उनका ख़ात्मा, और जो दुश्मन बाहर से जो उनको शय दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी तमाम जो मंसूबे इंशाअल्लाह खाक में मिलेंगे। और जिस तरह मैं ये कहना चाहता हूँ ख़िताम कि जिस तरह हमारे 80,000 लोगों ने अपना कुर्बानियाँ दी, 80,000, $150 अरब का हमें माशी नुकसान पहुँचा, और हमें जो कुछ हुआ माजी में $20 अरब में मिला है, $20 अरब। तो मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानियाँ पाकिस्तान के अवाम की, ये कुर्बानियाँ अफवाज पाकिस्तान के अफसरों की, जवानों की, ये कुर्बानियाँ पुलिस अफसरों की, उनके जवानों की, आम आदमी की। इसने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का ख़ात्मा नहीं किया, भी इन्होंने अमन कायम किया था। कोई मिसाल बता दें, दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क है जिसने 80,000 कुर्बानियाँ दी हों अपने अजीम सपूतों की, माओं की, बहनों की, जवानों की, और $150 अरब का नुकसान उठाया हो, और न सिर्फ पाकिस्तान में अमन कायम किया बल्कि दुनिया के लिए भी अमन कायम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ी की और देयर इज़ नो अदर एग्जाम्पल एंड आवर कमिटमेंट एंड मैनिफेस्टेशन टू कर्ब एंड फिनिश दिस टेररिज्म। तो आज फिर ये मामला, ये कई वजूहात हैं, उसके ऊपर मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहता। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज की मीटिंग्स बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई, बड़ी मस्बत उसमें नताइज निकले हैं, और यही पैगाम हमने कौम को देना है कि मिलकर हमने दहशत गर्दी का ख़ात्मा करना है। और ये आयरन रिजॉल्व है सियासी हुकूमत का वफाक में, सूबों में, और अफवाज पाकिस्तान का और इन सिपा सलार का और इनके तमाम ऑफिसर्स का। तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर हम मिलकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन आएंगे जब पाकिस्तान एक पुरअमन और खुशहाल मुल्क होगा। आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।